place. There are 4 steps to settling on a wildly important goal. First, it all starts by brainstorming. Ask yourself what kind of change would have the most impact on your life. इसलिए फोकस का मतलब वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स, आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हम्म? या आपकी प्रीचिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना? करने को बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, हजारों चीजें करने के लिए, है ना? लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा नंबर 1 इम्पोर्टेंट चीज क्या है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट चीज क्या है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना? वो जो सबसे 2 या 3 टॉप इम्पोर्टेंट चीज है उसको बोलते हैं वाइडली इम्पोर्टेंट गोल, है ना? तो उसको पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि मेरे लिए ये चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिर उसी के ऊपर फोकस करना है ना? उसको ज्यादा ध्यान देना, उस पर फोकस करना, उसको जरूर करना, बाकी चीजें हो या ना हो वो जरूर होना चाहिए। इसको कहते हैं फोकस। उसी चीज को इसमें बता रहे हैं। Think of things that are not currently working, or the things that, if they're made to work a little bit better, would have a dramatic impact on your life. Now list them all out. Next, you need to assess, out of everything you listed, which 3 would have the overall highest impact. Now, you need to test your potential goals, and there are 2 main considerations here. Is it measurable? Is there a way to keep score of your progress? If the answer is no, it is not a good candidate because a scoring system would help keep you motivated. And second, does it depend mainly on you? If you need to enlist outside help for more than 20% of your goal, it might be a challenge. When things depend on outside factors or other people, the challenge for you is even greater. And finally, state, or put simply, write it all down. Be specific and concise. Now let's look at an example. This is Mike. He's really excited to start executing his plans, and aren't we all? And Mike takes out a piece of paper and lists all the goals that are important to him. These are things like become more healthy, save more money, get a dog, buy a dependable car, travel the world, and so on. When he assesses things and tests them as we talked about, he realizes that becoming more healthy or buying a dependable car will have the most impact on his life. But they're not very measurable, at least not yet. So let's transform them. Become more healthy becomes to lose 5 kgs by March 2022. And buy a dependable car becomes buy a Toyota RAV4 2 to 3 years old at a cost of no more than 30k by April 2022. Now we're talking. These are specific goals that depend solely on Mike and have a specific deadline and way to keep track of. Wigs done. Good job, Mike. Now comes leverage. In this discipline, you learn how to get from point A to point B. Imagine that your point A is a huge, heavy rock. No matter how hard you push against it, it's not gonna move. But if you apply a little lever, the rock starts to move. And not by a lot, but it does move and in the right direction. The second discipline is all about finding the right lever so you can move your goals from point A to point B. Points A and B are what the author calls lag measures. These are results. They're very important as they tell you if you've reached your goals or not. Have you lost the weight? Have you made enough money? And so on. The lever in the rock is what's called a lead measure. And lead measures quantify the actions that have the most impact on your goals. Now back to Mike for an example. His lag measures are right now he's 70 kgs, which is point A, and he wants to be 65, point B. His lead measures are the how he'll get to achieve those goals. And how does one lose weight? Less calories in and more exercise and physical activity. And this is a good time to mention that a good lead measure has 2 characteristics. First of all, it's predictive. A change in the lead measure must create a change in the lag measure. And 2, it's influenceable. You must be able to influence it without dependence on someone else. So if Mike is to restrict his calories, it will for sure lead to a faster weight loss. So it's predictive. And who controls how much and what Mike eats? Mike. So his calorie intake is also influenceable. So if Mike concentrates on the actions that most influence his goals become not an if, but a when. The less he eats and the more he exercises, the faster he'll get to point B. Now let's move on. Number 3 is engagement.
And how do you best engage into a goal? By keeping a compelling scorecard. Humans are naturally wired to compete. We become highly motivated and engaged when there's an opportunity to win. Just look at every sport on the planet. The goal is always to win, to have a better score. The moment you take the score away, people stop trying so hard. So let's use this hardwired tendency to your advantage. And if you're like Mike, right now you might be thinking, that's all nice, but I want to lose weight and there's no one to compete with. True. So how about you compete with yourself? Come up with your own scorecard that forces you to act. A good scorecard has 3 requirements. First of all, it is simple. A more minimal scorecard is much easier to update. Think of any competitive sport. It usually has a simple score and time left in the game. It is a scorecard, not a spreadsheet, so keep it simple. A good scorecard is also visible. Put it next to your bed, on your bathroom mirror, whatever it is in your case. You should not have to turn on your laptop or log into a site to update it. And finally, a good scorecard is quickly readable. Anyone looking at it should be able to tell within seconds if you're winning or losing. So in the case of Mike, he makes a simple scorecard that keeps track of his daily calories and time spent exercising and sticks it on his fridge. 3 disciplines down, 1 more to go. Give it up for Mike! Finally, the last one is accountability. Disciplines 1 to 3 are to set up the execution. And discipline 4 is where the action is. Without the accountability piece, the goal will eventually be overtaken by what the author calls the whirlwind, or just the day-to-day menial trivial tasks. Basically, accountability is what will ensure you're staying on course. And there are 2 parts to the accountability discipline that you need in order to make this step productive. Accountability needs to be precise and regularly scheduled. And here's how it works for Mike. He schedules 15 minutes every Sunday evening for an accountability session. The idea is to quickly review his last 7 days' progress and see things like what went well, what didn't go well, how can he do better next week. He narrows down the specific issues he faced and comes up with a precise solution to overcome the pitfalls. The continuous review and adjustment will make sure not only that he stays on course, but that he's continually improving. Not to mention the personal satisfaction of seeing his progress week after week will keep him happy and motivated. And if you followed along this far, you saw how Mike went from being caught in the whirlwind of day-to-day tasks to figuring out what his wildly important goals are. And then he took the most important step, the execution of the plan. After all, the book is called The 4 Disciplines of Execution, not the 4 steps of making, applying, feeling good about it, and never implement it. And right now, you're either super motivated to get started, or you're a little bit confused because this is a rather complex system. Either way, let's talk implementation. How do you take all of this fantastic information and actually apply it? What is the first step? Let's talk implementation in the next video. Click. किसी को समझ में आया कुछ? हम्म। तो अब कैसे करेंगे प्रचार? चलिए अधूर धाम प्रभु बताइए। कृष्ण प्रदीप मैं जो यस। पॉइंट्स हम समझ में आए वो मैं शेयर करूंगा पूरा। तो हम्म। जो इसमें 4 वो बताए थे मेन एरियाज स्टार्टिंग में, इस पे हमें हम्म। अगर एग्जीक्यूशन है तो उस पे हमें ध्यान हाँ। रखना पड़ेगा। हम्म। 4 में फोकस, लिवरेज, एंगेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी। फोकस मतलब मैंने समझाया कि वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके हम्म। लिए 2 स्टेप्स बताया। पहले तो ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ेगा, फिर उसमें प्रायोरिटी वाइज लिस्ट करना पड़ेगा जो 2-3 हमारे मेन इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। तो तो सेक्टर उसको हम सर्वेंट, सेक्टर सर्वेंट के लिए क्या है वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल है? टू क्रिएट अ सेक्टर सर्वेंट। हम्म। नहीं तो कि अब ब्रेनस्टॉर्म करिए। तो आप बता दिए ऐसे ही बिना ब्रेनस्टॉर्म किए। वाइडली इंपॉर्टेंट गोल मतलब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? यस प्रदीप।
है ना। तो सब लोग से पूछिए, सब लोग बताएंगे। जो इसमें पहला वीडियो में बताया गया था फोकस वाला, उसमें एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं कि हम सबके लिए वाइडली इंपॉर्टेंट गोल क्या है इस ग्रुप के लिए। सब डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स का अर्थ बताइए, कई लोगों को भी नहीं पता हो। सबसे वाइडली, ज्यादा जरूरी क्या है, इसलिए मैं बोला था सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मतलब वाइडली इंपॉर्टेंट गोल, सबसे ज्यादा जरूरी लक्ष्य जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। प्रीचिंग कर प्रीचिंग के दौरान एज ए सेक्टर सर्वेंट, मैंने बोला कि एज ए डिवोटी। डिवोटी तो बोलेगा गोलोक जाना चाहता हूँ। ये वाइडली इंपॉर्टेंट। गोलोक जाने का यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है प्रचार के लिए। तब मैं कि आप सेक्टर सर्वेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी लक्ष्य। बहुत सारे गोल्स हैं, गोल मतलब तो आप जानते होंगे। हैं? कोई है जो गोल नहीं जानता है गोल क्या होता है? गोल फुटबॉल में होता है ना, गोल मारना है। हैं? लक्ष्य, क्या आप पाना चाहते हैं उसको कहते हैं गोल। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, सब मेहनत करके क्या पाना चाहते हैं, सब क्या क्या पाना चाहते हैं, रीचिंग से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या अचीव हासिल करना चाहते हैं, क्या हमारा गोल है, कौन बताएंगे? एनीवन? एज ए सेक्टर सर्वेंट आपका गोल क्या होना चाहिए? भानुमति लक्ष्मी माता जी बताएंगे, चलिए। हरे सुन। कृष्णा वही प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, मैं प्रिस्टिक पॉइंट से बता रही हूँ कि जैसे मैं अपना ये गोल डिसाइड करती हूँ कि प्रभु जी कुछ लोगों को ऐसे प्रीच करे, ऐसे कल्टीवेट करे कि वो आगे मुझे सपोर्ट करे, आगे वो लीड करे प्रभु जी, जिससे कि जो प्रीचिंग का एरिया बढ़े और क्वालिटी अच्छी हो प्रभु जी। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ जिसको मैं भी प्रीच करे प्रभु जी, मैं उसको सोच रही हूँ कि और अच्छे से कल्टीव हो जाए, पूरा एक पक्का लीडर बन जाए वो, जिससे कि क्या कि प्रभु जी अब जो काम मैं करती थी वो हाँ। अब वो करें और वो लोगों को संभाले प्रभु जी। तो ऐसा मतलब प्रभु जी कुछ एक दो गर्ल्स कर भी रही हैं प्रभु जी। तो ये मेरा प्रभु जी है लक्ष्य। लक्ष्य आपका है कि अपना क्लोन तैयार करना है। यस प्रभु जी। वेरी गुड। अपने जैसा सेक्टर सर्वेंट बनाना, जैसे अजय धाम प्रभु बोल रहे थे सेक्टर सर्वेंट बनाना है। सेक्टर सर्वेंट का गोल क्या है? सेक्टर सर्वेंट बनाना है। लीडर में तो कई चीजें हो जाएंगी फिर। लीडर में आपको भक्ति वृक्षा लीडर भी लीडर है ना। और और क्या है? भक्ति वृक्षा के ऊपर क्या है? असिस्टेंट भक्ति वृक्ष लीडर। नहीं नहीं, भक्ति वृक्षा के ऊपर बोल रहा हूँ, आप नीचे उसके बता रहे। उसके ऊपर पूरी सेक्टर सर्वेंट ही है। सेक्टर उसके ऊपर सर्वेंट, उसके ऊपर सर्कल सर्वेंट। है सर्कल सर्कल सर्वेंट। सर्कल सर्वेंट। तो गोल ये भी है कि सेक्टर सर्वेंट बनाना है और भक्ति वृक्षा लीडर, दोनों आपका गोल हो सकता है कि नहीं। लीडर में दो पोजीशन आपके अंडर में है, एक भक्ति वृक्षा लीडर, एक होता है वीवीएल और एसएसएल, है ना। तो ये एक माता जी कौन सा, इन दोनों में कौन सा लीडर बनाना आपका गोल है? वीवीएल या एसएसएल? प्रभु जी एसएसएल बनाना है मुझे। एसएसएल, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये आपका लक्ष्य। और अनंत श्याम प्रभु का लक्ष्य क्या है? कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, जो भी आपके दिमाग में, कोई जरूरत नहीं कि नकल करना है या यहाँ देख। आप जो अभी तक सोचते हैं वो बताइए, है ना। इसको सुनने के बाद मत बताइए आप क्या सोचते हैं, अभी तक क्या सोच रहे थे इससे पहले, इस वीडियो से पहले जो आप सोच रहे थे वो बताइए। अगर आपसे पूछा जाता वीडियो देखे बिना तो क्या बताते कि आपका क्या, क्यों प्रीचिंग कर रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं लोग, क्या करना चाहते हैं। कई लोगों का लक्ष्य होता है भक्त बनाना, है ना। तो मेरे को, मेरे एरिया में प्रभु जी 300 भक्त हैं, उसको 600 भक्त करना है ना। ये भी हो सकता है लक्ष्य, है ना। लक्ष्य और क्या हो सकता है? फंड रेजिंग लक्ष्य हो सकता है ना। कि पिछले साल मैंने 5 लाख फंड रेज किया था, इस साल मैं 10 लाख करूंगी। जैसे अभय प्रदा करुणा माता जी फंड रेजिंग करती हैं, है ना।
सब लोग कर सकते। कांग्रेगेशन लीडर अगर फंड नहीं रेज कर रहा है, इसका मतलब उनका प्रीचिंग सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, है ना। तो ये भी लक्ष्य हो सकता है, कई सारी चीजें हैं। तो आप लोग बताइए, मैं अब नहीं बोलूंगा ज्यादा, मैं आप लोग सुनना चाहता हूँ। लक्ष्य, क्या क्या पॉसिबल लक्ष्य हो सकता है सेक्टर सर्वेंट के दिमाग में, क्या क्या चल सकता है। ये सब है प्रोडक्ट होने माता जी, बताइए। आवाज ही नहीं आ रहा है। Krishna project, please accept my humble obeisances. Now I can audible project. बोलिए। project मुझे, मेरा मतलब ऐसा विजन है, मैं प्रोजी आप आशीर्वाद दीजिएगा तो शायद पूरा कर पाऊंगी। प्रोजी मुझे ऐसा लगता है कि फंड रेजिंग के डिपार्टमेंट में फंड रेज करना तो प्रोजी आप लोगों की कृपा पर ही डिपेंड करता है, वैष्णवों की कि और ज़्यादा फंड रेज कर पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजी फंड रेजिंग के डिपार्टमेंट में एक फंड रेजिंग कोर्स होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि जो प्रीचर है अगर वो फंड रेज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो राइट प्रीचिंग नहीं कर रहा है। तो प्रोजी फंड रेज, मुझे ऐसा लगता है फंड्स जो है वो एक बैकबोन हो जाता है हम जो प्रीचिंग करते हैं उसके लिए। और मैं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं। मतलब भक्तों के डिपार्टमेंट में कोई भी हम कोई बहुत बड़ा इवेंट करने जाते हैं या कोई भी हम लोग कोई जगह टेम्पल बना रहे हैं कुछ भी है तो फंड्स की बहुत ज़रूरत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजे उसके लिए एक विजन होना चाहिए कि हम कैसे भक्तों के समाज में बहुत अच्छे से फंड रेज करें। क्योंकि प्रोजे मैं देखती हूँ कि जब बहुत बड़ी बड़ी लोग कथाएं ऑर्गेनाइज करते हैं 2-2 करोड़ रुपए लगाते हैं तो एकदम से हो जाता है और हम भक्त लोग जो होते हैं उसके लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। नहीं तो तो आप लक्ष्य बताओ ना, स्टोरी नहीं सुनाना है तो हमको। प्रोजे सॉरी आप प्रोजे प्रोजे स्टोरी मेरा बस सुनाने यही लगी लगता हमको। हमको लेक्चर नहीं सुनना है, स्टोरी नहीं, है ना। टू द पॉइंट है। बताइए कि लक्ष्य क्या है, आप क्या होना प्रोजे चाहिए। में एज मेरा ए लक्ष्य सेक्टर, आपका नहीं, सेक्टर सर्वेंट की बात चल रही है अभी, है ना। यस प्रोजे हाँ, सेक्टर सर्वेंट का क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, कि क्या प्रोजे क्या गोल हो सकता है। सभी लोगों को फंड रेज करने में हेल्प कर सकूं, मतलब ऐसा होना चाहिए कि मतलब ऐसा कुछ विजन लेके चलना चाहिए कि सब लोग फंड वेरी रेज गुड। कर तो सेक्टर सर्वेंट का एक लक्ष्य है कि उसको फंड रेजिंग करना है, बढ़ाना है फंड। ओके, कोई लिख रहा है, आई डोंट नो, समवन शुड राइट। ओके, और कोई बताना चाहेगा। व्हाट इज योर लक्ष्य, क्या आप प्रीचिंग सब कर रहे हैं ना, तो प्रीचिंग से क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो बताइए। कोई बता ही नहीं रहा है, केवल एक दो लोग हाथ उठा रहे हैं। जैसे आप लोग, कोई बाकी लोग प्रभु जी बस आपने बोला इसलिए कर रहे हैं प्रीचिंग, कोई लक्ष्य। ये भी एक विडंबना है कि पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं। तो सब लोग हाथ उठाते हैं इतना देर हो गया। प्रभु जी हम तो आए थे कुछ लेक्चर सुनने के लिए, बस हमको पता नहीं था कि आप ये सब पूछने लगे हैं। कोई लक्ष्य ही नहीं है। हैं? कहते हैं कि जब तुझे लक्ष्य नजर आने लगेंगे तब तुम्हारे लक्ष्य पर निशाने लगेंगे। लक्ष्य नजर ही नहीं आ। प्रभु जी लक्ष्य के बारे में सोचे, लक्ष्य तो था कि बढ़िया से लेक्चर देना है जाके। लेक्चर तो ये करना क्या है। प्रभु जी लक्ष्य था कि ऐसा लेक्चर दूं कि लोग ताली बजा दें। लक्ष्य ये था कि लोग प्रभु जी मेरे को प्रणाम करें। तो वो भी है, कुछ भी है तो बताइए, तो कम से कम बोलना चाहिए सबको ये। चलिए, शशि प्रियनाथ प्रभु, बाकी लोग सोच रहे हैं तब तक बाकी लोग सुन। कई भक्त यहाँ बैठे हैं, बोल प्रभु मेरे को लक्ष्य तो कभी सोचा ही नहीं। ओके, शशि ओके, प्रियनाथ प्रभु हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एज ए सेक्टर सर्वेंट लक्ष्य है कि एक सिस्टमैटिक प्रीचिंग एनवायरनमेंट बनाया जाए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑल द डिवोटीज कैन हैप्पीली ग्रो एंड relish कृष्णा कॉन्शियसनेस एट वेरियस लेवल्स। हाँ, पर ये लक्ष्य नहीं, ये लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य नहीं है, ये भाव है, भाव। लक्ष्य जो होना चाहिए वो नंबर में होना चाहिए, है ना। कि मेरे को 5 लाख से 10 लाख कमाना है, या
200 से 300 भक्त, आज 200 है मेरे पास, उसको 200 से बढ़ा के 400 करना है। ये लक्ष्य होता है, ये थोड़े लक्ष्य होता है। लक्ष्य का मतलब आप उसको गोल हमेशा स्पास स्मार्ट होने, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, है ना, वो लक्ष्य है यस है ना। तो ऐसे इसलिए ये यस टॉपिक लिया गया है, ताकि आपको क्लियर हो कि लक्ष्य क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। तो नंबर में बताइए, क्या नंबर कुछ सेट किया अपने लिए कि मेरे को इतने भक्त बनाने हैं? यस प्रभु जी, नंबर में बताऊं तो 3 साल में 25 लीडर्स क्रिएट करना है प्रभु जी। अच्छा, 3 साल में अभी कितने हैं? अभी तो प्रभु जी 10 के आसपास है, 8-10 हाँ, के आसपास। तो ये बोलिए कि अगले 3 साल में 10 से 25 लीडर तक ले जाना हाँ, है। 15 और ट्रिपल क्रिएट ट्रिपल करने हैं। करना है प्रभु। 15 और करना है या 35 टोटल? 10 प्लस 25 या 10 से 25? नहीं नहीं, 10 से 30 करना है प्रभु जी, 3 टाइम्स करना है, मतलब ये है अभी। 10 से 30, अच्छा चलिए चेंज हो गया। हाँ जी। ओके, तो 10 से 30 करना है, तो 20 एक्स्ट्रा और ऐड करना है। हाँ तो जी। ये बाई यस टू यस। बाई 2029 है। 9। यस। जून जून 2029। जून 2029। यस प्रभु हाँ, जी। 2029, फ्रॉम 10 to 25 लीडर। कौन से लीडर, बीबीएल या एसएसएल? भक्ति वृक्षा लीडर्स एज वेल एज सेक्टर सर्वेंट्स। नहीं नहीं, दोनों कैसे हो, कोई एक ही चीज बोलोगे ना यार। 30 क्या होंगे, नहीं, भक्ति क्योंकि वृक्षा प्रभु जी लीडर भक्ति या वृक्षा 30? लीडर्स जो अभी हैं वो, जो अभी भक्ति वृक्षा लीडर्स हैं वो तब तक सेक्टर सर्वेंट बन जाएंगे प्रभु जी ना। नहीं नहीं नहीं, 30 सेक्टर सर्वेंट या 30 भक्ति वृक्षा लीडर? नहीं, 30 भक्ति वृक्षा लीडर्स, सेक्टर सर्वेंट तो अभी नहीं बन पाएंगे 30। 10 सेक्टर सर्वेंट्स और 20 भक्ति वृक्षा हाँ, लीडर्स। ये बात हुई। देखिए अभी देखिए, तो ये यही बोल रहा हूँ कि आप लोग कभी सोचते नहीं हो, अभी अभी आप सोचना शुरू कर रहे हैं, है ना। दिस इज द प्रॉब्लम। वी ऑल आर लीडर बट आवर गोल इज नॉट वेरी क्लियर, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हम तुक्का मार रहे हैं, फिर अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये सोचा था, अच्छा ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए था, है ना। इसका मतलब आपके पास क्लियर गोल नहीं था अभी तक। व्हाट द पॉइंट? नहीं। हाँ, ये चीज समझना है ना। यस हाँ प्रभु। हाँ, ये यही चीज है, देखिए। यस, गॉट इट। और आप तो कम से कम कुछ तो बोल दिए, बाकी लोग तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, है ना। बाकी लोग तो बोल ही नहीं पा रहे। अच्छा प्रभु जी, ये भी होता है क्या, गोल भी बनाया जाता है क्या? ये तो मैंने पहली बार सुना है। हम तो यहाँ भक्ति करने आए थे, मतलब माला, गोल, भक्ति में भी गोल है देखो। 16 माला तक पहुंचना, वहां भी नंबर है कि नहीं है? वहां भी नंबर है। 16 माला नंबर है ना, 64 माला नंबर है, हर जगह नंबर है कि नहीं? प्रभु जी, आज भाव में मैंने 2 माला, आज भाव में मैंने जप किया, कितना किया पता नहीं प्रभु जी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब माला बहुत बहुत जप किया आज मैंने, भाव में किया था, है ना? तो इस तरह से प्रभु का कहना है कि भक्ति वृक्षा लीडर और सेक्टर सर्वेंट लीडर बनाना मेरा गोल है, जो मैं समझ पाया आपके हैं। यही है यस ना? प्रभु। हाँ, यस प्रभु। ओके, वेरी गुड। चलिए, अनंत श्याम प्रभु, आपका क्या गोल है? एज ए सेक्टर सर्वेंट बोल रहा हूँ, है। एज ए यस प्रभु। ब्रह्मचारी मत बताइएगा। यस। क्योंकि अभी हम हैट पहने हुए हैं, किसका, सेक्टर सर्वेंट का हैट, हैट पहन के बैठे हैं यहाँ पे, ब्रह्मचारी नहीं है। कोई बोले प्रभु जी, मेरा एज ए मदर मेरा गोल है कि अपने बच्चे को जो है वो, उसको, उसका वेट बढ़ाना है। मदर का भी डिस्कस नहीं हो रहा, अभी सेक्टर सर्वेंट का डिस्कस हो रहा है। बच्चा मेरा पतला हो गया, उसको मोटा करना है। दैट इज माई गोल। वो एज ए मदर आपका गोल है, अभी मदर का डिस्कशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब सोचना है ना, कैसे गोल सेट किया जाता है, ये भी समझना है। तो यस, अनंत श्याम प्रभु, आप सेक्टर सर्वेंट है ना कि नहीं है? यस प्रभु जी।
कई कई बार भक्त लोग इस ग्रुप में आ जाते हैं पर वो सेक्टर सर्वेंट होते नहीं। यस प्रभु जी, अभी एक भक्ति वृक्ष लीडर है प्रभु जी। अभी अगले जून 2027 तक 5 भक्ति वृक्ष लीडर बनाने हैं प्रभु जी। वेरी गुड। है ना, तो भक्ति वृक्ष लीडर बनाने हैं आपका गोल है, वेरी गुड। और साधु जीवन प्रभु, बहुत भक्त अभी कुछ बोले ही नहीं। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी अभी एक भी लीडर नहीं है, तो मेरा भी गोल यही है कि बस भगवान की कृपा से जल्दी से एक भक्ति वृक्ष लीडर, नेक्स्ट ईयर तक 2 भक्ति वृक्ष लीडर कांग्रीगेशन में और 2 यूथ लीडर यूथ में। बहुत अच्छा। कम से कम चलिए, गनीमत है कि आपने बोल दिया नेक्स्ट ईयर। नहीं तो मुझे लगा कि गोल है कि लीडर बनाना है, मे बी 2050 तक। नेक्स्ट ईयर बोल के आपने बहुत राहत का सांस ले दिला दिया हमको। कुछ आपका डेडलाइन है। यस प्रभु जी। वेरी गुड। और मुरारी अर्चन प्रभु, आपका क्या गोल है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अभी तो प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर मैनपुरी में, लेकिन हमारा गोल है कि 1 साल के अंदर कम से कम 2 से 3 भक्ति वृक्ष लीडर बनाने का प्रयास करें। वेरी गुड। 1 साल मतलब क्या, जून ये 2027 या दिसंबर 2027? दिसंबर, तो ये अभी जो 26 लास्ट तक, अच्छा, 26 खत्म होने तक, 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2026। 2026 तक। ओके, चलिए ये पॉइंट हुआ कुछ, है ना। डेट होता है तो और क्लियर हो जाता है ना। हम लोग जी प्रभु जी बना ही देंगे, बना ही देंगे। लीडर बनाना था मेरे को प्रभु जी, और सोच रहा हूँ कभी प्रयास चल रहा है प्रभु जी, बना देंगे। बस आप चिंता मत कीजिए, हम बना देंगे। कब तक बनाएंगे, मतलब बना ही देंगे, कभी तक तो बना ही देंगे। कम से कम भगवत जाने से पहले तो बना ही के जाएंगे। कोई डेट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कब तक, डेडलाइन नहीं। चलिए, राधा कृपा प्रभु आप बताइए, आपका क्या लक्ष्य है, गोल? आपका गोल, पहले माइक ऑन करना होना चाहिए। हरे यस। कृष्ण प्रभु, चरण सादर प्रणाम। प्रभु हाँ, जी मेरा लक्ष्य है रामनवमी तक, 2027 के रामनवमी तक 5 गांव में प्रचार करना। 5 गांव में प्रचार करना है? हाँ, 2 गांव में कल चल रहा मतलब है। 5 गांव एक में जाके घूम के आ जाएंगे या क्या करेंगे? नहीं प्रभु जी, प्रचार वहाँ करने का मतलब क्या? भक्त बनाना है प्रभु जी। कितने भक्त? कितने भक्त बनाने हैं, कितने माला करने वाले, किस लेवल के भक्त का मतलब क्या, मतलब एक माला वाले या छोड़ो? तो कम से कम 4 माला करने वाले भक्त होने चाहिए। कितने, 2 या 1 या? एक गांव में 20 होने चाहिए। हर गांव में 20 हैं? 5 गांव में, हर गांव में 20-20 भक्त, कम से कम 4 माला करने वाले हैं। जी अगले साल में जी। 1 साल के अंदर या कितने साल के अंदर? ये नहीं, अप्रैल तक रामनवमी तक प्रभु जी। रामनवमी तक, 2000, 2027 के अप्रैल रामनवमी। 2027। वेरी गुड। चलिए, तो ये एक बात हुई। ओके, एज ए सेक्टर सर्वेंट आपका ये गोल है? ओके, ये भी हो जी सकता प्रभु है जी। पॉसिबिलिटी। ओके। भक्त बनाना आपका गोल है ना? जी प्रभु जी। ओके। ओके, तो ये यही, तो कितने गोल हो गए बताइए, कोई नोट किया है? हम्म, 7 गोल्स हो गए अभी, हम्म, डिवोटीज ने बोला है। ओके। हम्म, तो इसे वो कहते हैं गोल, है ना। पहले आइडेंटिफाई करना कि आप करना क्या चाहते हैं। तो गोल कैसे डिसाइड होता है? एक तो आप लोगों ने सोचा है, आप लोगों ने बताया कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ, है ना। यस, बक्रेश्वर माधव प्रभु कुछ बताएंगे गोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। काफी प्रभु देर जी, सोचने के बाद आए हैं, देखते हैं क्या बताएंगे कुछ। प्रभु जी क्या मैं शेयर कर सकता हूँ कुछ इस पे स्क्रीन पे? हाँ हाँ, यस जी। करिए शेयर।
सीट बनाया था वो जी पहले गोल्स का, गोल उस का समय सीट में। बनाया है, चलिए दिखाइए दिखाइए। किसके साथ कोचिंग एग्रीमेंट हो गया? हाथी के साथ किए थे जी। ये ओके। तो ये विजन लिए थे वो जी हाँ कि ऑल ओवर जो एरिया आपने मेरे को दिया पिचिंग के लिए, इसमें 120 फैसिलिटेटर क्रिएट करने थे। हाँ। तो ये 2027 तक गौर पूर्णिमा तक। ओके। तो अभी तो हम इस पे पूरी काम कर रहे हैं अभी। अभी तक कितना हुआ? अभी तक वो जी हमारे पास लगभग 60 के आसपास आ गए हैं। ओके। तो इसमें जिस पूरा टारगेट है इसमें, और आगे फ्यूचर का टारगेट लिया है, 2035 तक का टारगेट लिया है वो जी। हम्म, लगभग 12,800 हम्म, डिवोटीज पे हम काम करेंगे, और हम्म, लगभग 640 फैसिलिटेटर्स पे काम करेंगे मुझे। ओके। Yes। और ये पर्सनल गोल भी लिए थे मुझे कुछ यहाँ पे। तो हम्म, मेरे है ना, ये लोकल गाजियाबाद के लिए भी कुछ गोल थे, और कुछ जो आपने पूरे सारे एरिया दिए थे मुझे, उन सब के लिए गोल दिए थे। हम्म, ये ये सारा पूरा हम्म, टारगेट बनाए थे वही 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में। तो अभी 26 का टारगेट मेरा ये है। ये अचीव हुआ है पूरी। तो हम्म, अभी पूरा मिला के हम्म। अभी भी इस पे काम कर रहे थे पूरी गोल पे। अचीव हुआ है ना, एटलीस्ट आपने गोल कुछ सेट किया, ये भी बहुत बड़ा हाँ, गोल है। यस जी। क्या कम से कम आपने बनाया, प्लान किया। और बस इतना ही बनाए थे अभी ओके। तो सीख रहे हैं बस इसको। और वेरी गुड। अच्छा है आपने एक पेपर पे कम से कम लिखा आपने, ताकि आपको बाद पद में कम से कम पता चल सके कि आपने किया कि नहीं किया है ना। यस जी। नहीं भी किया तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं किया है ना। यस जी। आप पेपर पे लिखेंगे ही नहीं तो बोलेंगे प्रभु जी यही गोल था मेरा, क्या कि कोई गोल नहीं था। यस जी। प्रभु जी जो हो गया वही गोल था। हैं? कोई व्यक्ति जा रहा है कहीं, रास्ते में जा रहा है तो मुझे कहाँ जाना था आपको? बस जहां पहुंच जाए। जहां पहुंच जाए वही जाना था। तो ये भी कुछ लोगों का गोल होता है कि जहां पहुंच गए वही गोल था। क्योंकि कोई गोल ही नहीं है उनका, है ना। वो सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी गलत नहीं होता है। कभी उसको ये फील नहीं हुआ कि मैंने अपना गोल अचीव नहीं किया, बोले हाँ नहीं, बस पहुंच गया, जहां पहुंच गया वही गोल था बस। है? क्योंकि उसने गोल सेट ही नहीं किया, है ना। ओके। तो ये पहला चीज है कि हमें अपना गोल सेट करना है, गोल सेटिंग जिसको बोलते हैं। हैं, तो आप में से कितने लोगों ने अपने पेपर पे लिख रखा है कि आपका गोल क्या है? 2 या 3 गोल होना चाहिए, जिसको बोलते हैं वाइडली इंपॉर्टेंट गोल। करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एज ए सेक्टर सर्वेंट आप क्या अचीव करना चाहते हैं, 1 2 3 आपको लिखना है। नंबर होने चाहिए, इतने 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 16 राउंड इतने, है ना। तो हम एक तो आप अपना गोल फिक्स करते हो, एक गोल ऊपर से आता है ना। तो जैसे आप लोगों को मैंने बोल दिया था, गोल दिया था कुछ, किसी को याद है? या आप लोग भी सुग्रीव की तरह भूल गए? हम्म? इसको याद है कुछ गोल? हम्म? भाग लोग सोच रहे हैं कहाँ दिया था, कब दिया था आपने गोल, मतलब। हम्म? अच्छा, मुरारी अर्चन प्रभु हाथ उठाए, देखते हैं क्या बोलते हैं, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने हमें टारगेट दिया था 2 साल का। में हमने टारगेट दिया था कि 50 भक्त हम 16 माला वाले करेंगे, हाँ। और कम से कम 50 भक्त हम
मासिक सेवा वाले करेंगे, और हम्म, ऐसे कुछ हमने टारगेट दिया, तो कुछ थोड़ा बोल रहे हैं हम, लिखा है हमारे पास पे। और ओके, देख लीजिए एक बच्चे, बार है कि जी गोल ही अगर भूल गए तो फिर जी जी, नहीं लिखा रास्ते। है पूरा। और उस पे हम वर्क भी कर रहे हैं पूरा, हम एक्सेल शीट बना रहे हैं प्रभु जी, हम बहुत जल्दी वेरी आपके गुड, चरणों में समर्पित करेंगे, बहुत बढ़िया, जिसमें हम लगभग पूरे पे हम आ गए हैं, जितना हमने टारगेट दिया था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई बताएगा क्या गोल दिया गया था? 2 शब्दों का गोल था। हम्म, किसको याद नहीं है, सेक्टर सर्वेंट बन गए तो आपको याद ही नहीं है गोल, तो कैसे करेंगे? ओके, किसी को नहीं याद है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मुझे तो एक चीज याद है जो हर बार आप बोलते हैं, हाँ सेक्टर सेवन का उससे रिलेशन है कि नहीं। आप बोलते हैं कि जब तक नया भक्त बनाएंगे नहीं तब तक नया साल मनाएंगे नहीं। हाँ, अच्छा, वेरी गुड, ओके, थैंक यू। ओके, वक्रसर माधव प्रभु आप बताओ। डबल इट का बोल दिया था सर। डबल इट 2 शब्दों का गोल था, डबल इट है। यस। मुझे लगा आप लोग भूल ही गए हैं, चलिए कम से कम कुछ तो याद है। हिंट दिया उसके बाद भी कई लोग नहीं समझ पा रहे थे। क्या डबल इट करना है? कितना रोटी खाएंगे उसको डबल करना है? क्या डबल करना है? व्हाट? सेक्टर सर्वेंट्स रोज ही डबल इट करता है। सेक्टर सर्वेंट। हर चीज को डबल करना है ना, दैट शुड बी आवर गोल, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नंबर ऑफ डिवोटीज 16 राउंडर्स, नंबर ऑफ भक्ति वृक्षा असिस्टेंट, भक्ति वृक्षा लीडर्स, number of bhakti vriksha leader, number of sector servant leader, number of circle servant leader, सबको डबल करना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, है ना, गोल। लेकिन एज ए सेक्टर सर्वेंट, इनमें से कुछ गोल आपके होंगे, कुछ गोल भक्ति वृक्षा लीडर के गोल होने चाहिए कि वो भक्ति वृक्षा लीडर बनाए, और 16 राउंडर्स क्रिएट करें। सेक्टर सर्वेंट का गोल होना चाहिए सेक्टर सर्वेंट बनाए, है ना। तो इस तरह से हर व्यक्ति अपने अपने लक्ष्य को पूरा करे, लेकिन ओवरऑल सब लोग आपके नीचे जितने लोग हैं उन सबका गोल वो अचीव करे, ये भी आपका गोल होना चाहिए। जैसे आप अगर सेक्टर सर्वेंट है तो आपके अंडर में जो भक्ति वृक्षा लीडर है उनका भी गोल सेटिंग करवाना और गोल अचीव करवाना, वो भी आपका गोल है कि नहीं? हालांकि वो आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, बट उनके माध्यम से करोगे, लेकिन वो भी आपकी ही जिम्मेदारी है। तो इस तरह से हमें अपने गोल को पहले सेट फिक्स करना चाहिए। हम्म, तो गोल तब फिक्स होगा जब हमें पता होगा कि अभी हमारे पास कितने सेक्टर सर्वेंट लीडर कितने हैं अभी, कितने भक्ति वृक्षा लीडर हैं, वो हमारे पास डेटा होना चाहिए, है ना। समझ में आया? तो आप सब लोग प्रचार कर रहे हो ना, कि कोई लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं? सब लोग कर रहे हैं प्रचार। यस प्रभु जी। तो सब लोग, आप सबके पास यस भक्ति प्रभु। भक्ति वृक्षा लीडर हैं? तो आपके भक्ति वृक्षा लीडर कितने हैं अभी? और 1 साल का गोल होना चाहिए, 5 साल का नहीं, 3 साल का नहीं, गोल कितने का होना चाहिए? 1 साल का। तो अगले 1 साल में आप कितना करेंगे, है ना। तो 1 साल का गोल बनाना चाहिए कि विद इन ए ईयर, 3 साल में आप बहुत लंबा समय हो जाएगा, है ना। तो 1 ईयर का गोल रखिए कि
फ्रॉम जून 2026 टू जून 2027 है। तो अभी जैसे मैं पूछूं अगर अ, बक्तेश्वर माधव प्रभु से कि आपके पास कितने भक्ति वृक्षा लीडर हैं अभी? यस प्रभु, तो गाजियाबाद में मुझे भी 12 त्रिवृक्षा लीडर हैं। हाँ, गाजियाबाद में ही पूछ रहा हूँ, है यस, ना? 12 प्रभु जी। हाँ, तो 12 भक्ति वृक्षा लीडर हैं। और सेक्टर सर्वेंट तो कोई नहीं है अभी, ठीक है प्रभु जी। एक सेक्टर सर्वेंट है ना? अच्छा। तो ये आज का आपका है कि एक सेक्टर सर्वेंट लीडर एक, भक्ति वृक्षा लीडर 12, असिस्टेंट कितने हैं? असिस्टेंट है प्रभु जी 30, 30। 30 है ना? 16 राउंडर्स की इनिशिएटेड डिवोटी कितने हैं? 16 राउंडर कितने हैं? इनिशिएटेड प्रभु जी 8 टू 30। 15 कितने हैं? 1 to 8 कितने हैं? यू गॉट द पॉइंट? यस तो प्रभु ये जी। सबका नंबर सामने लिख लीजिए, है ना? इसीलिए अभी हमने कांग्रेगेशन के डेटाबेस मंगाया था। अब फिर ये आज तक है जून 2020। अब जून 2026 में ये है 2027 में हर चीज कितना बढ़ाना चाहेंगे वो लिखिए अगले अगले कॉलम में, है ना? आज इतने हैं, 2026 तक इतने करने हैं मेरे को, है ना? तो ये हो गया आपका गोल, ठीक है, वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल। लेकिन इनमें बहुत सारे हो गए, तो इसमें सब केवल मेन मैं एक या दो या मैक्सिमम तीन अगर आपसे चुन के वही तीन आपको फोकस करना है ना? तो उस पे क्या करेंगे, सिर्फ तीन सेलेक्ट करना है, तो आप उसमें सेक्टर सर्वेंट क्रिएट करना, भक्ति वृक्षा लीडर क्रिएट करना और असिस्टेंट भक्ति वृक्षा लीडर क्रिएट करना, ये तीन आपका गोल रख सकते हैं आप, है ना? तो सारे सेक्टर सर्वेंट का मेन गोल यही तीन होना चाहिए, है ना? कि आपको सेक्टर सर्वेंट लीडर डबल करना है, भक्ति वृक्षा लीडर डबल करना है, या जो भी करना है, जितना भी आप लक्ष्य रखो आप डिसाइड करो, अशिष भक्ति वृक्षा लीडर इतना करना है। तो ये हो गया आपका वाइडली इंपॉर्टेंट गोल। क्लियर? आनंद श्याम प्रभु? यस प्रभु, यस प्रभु। अब जैसे साधु जीवन प्रभु का है, साधु जीवन प्रभु का है ना? अब राधा कृपा प्रभु जो है वो बोल रहे हैं गांव में भक्त बना, भक्त बनाना आपका काम नहीं है, सेक्टर सर्वेंट का काम नहीं है। लेकिन अभी कोई भक्त है ही नहीं, तो गांव में भक्त बनाने का ठीक है, लेकिन सेक्टर सर्वेंट का रोल ये नहीं कि गांव में प्रचार, वो विलेज सेक्टर सर्वेंट का रोल हो जाएगा फिर। तो आप अगर शहर में गया गया में है तो गया में आपको भक्त बनाना है, पहले भक्त बनाना है, फिर भक्त बना के फिर टारगेट रखिए, 1 साल का टारगेट बनाइए, उसमें से कितने आप से भक्त असिस्टेंट भक्ति वृक्षा लीडर बनाएंगे, कितने भक्ति वृक्षा लीडर बनाएंगे, कितने सेक्टर सर्वेंट लीडर बनाएंगे, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, गांव में जाके प्रचार करना है, उसके लिए अलग एक टीम होनी चाहिए, है ना? लेकिन आपका एज ए सेक्टर सर्वेंट रोल होना चाहिए शहर में भक्त बनाना, है ना? और फिर उनमें से कुछ लोगों को भेज दीजिए गांव में जाने के लिए, है ना? वो गांव की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन आप अगर गांव में चले जाएंगे तो शहर में कौन भक्त बनाएगा, है ना? तो करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें सोचना सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। गांव में भी प्रीचिंग करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट गांव में करना नहीं है अभी। अभी हम गया में आप हैं तो गया में भक्त बनाना आपका मेन लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है? तो उससे फोकस कीजिए। अब कितने भक्त में कितना भक्त बनाना है, 4 माला वाले आपने बताए, है ना? 4 माला वाले, तो आप उसका 1 साल का लक्ष्य बनाइए, इतने से इतना। तो इस तरह साधु जीवन प्रभु का लक्ष्य क्या है? उनके पास अभी भक्ति वृक्षा लीडर एक भी नहीं है, एक भी नहीं है आपके पास? यस प्रभु जी, अभी नहीं, असिस्टेंट में आ रहे हैं प्रभु जी। हाँ, तो एक तो पहले आप असिस्टेंट का लक्ष्य रखो अभी, है? यस प्रभु असिस्टेंट जी। और दो दो आप रख सकते हो, असिस्टेंट भक्ति वृक्षा लीडर मेरे को बनाना है, और एक भक्ति वृक्षा, उस तरह से आप लक्ष्य रखो हर व्यक्ति। यस ये 2 लक्ष्य आपका हो जाएगा अभी। और यस प्रभु तीसरा जी। रह सकते भक्त बनाना भी रख सकते हैं आप, कितने 16 राउंडर भक्त बनाएंगे, कितने, यस प्रभु। है ना? ये भी रख सकते हैं आप, 3 रख सकते हो, मैक्सिमम 3 वाइडली इंपॉर्टेंट गोल रखना है हमको,
है ना। यस प्रभु तो आपके लिए ये 3 हो जाएगा, जी, यस है ना। प्रभु तो उसी तरह से सारे भक्तों को सबसे पहले अपना गोल फिक्स करना है ना। और ये तो ये हो गया कि नंबर ऑफ डिवोटी का गोल आप रख सकते हैं, है ना। साथ में आप फंड रेजिंग का भी गोल रख सकते हो कि अभी मेरा कितना फंड आ रहा है ना। ये भी एक वाइडली इंपॉर्टेंट गोल में रख सकते हैं कि आज मेरी कांग्रेगेशन से अभी कितने फंड्स आ रहे हैं और अगले 1 साल में कितने बढ़ाएंगे इसको, है ना। नेक्स्ट ईयर तक इसको कितना करेंगे। तो दैट ऑल्सो शुड बी योर गोल। तो ये 2 चीज होना चाहिए, एक सेक्टर सर्वेंट लीडर, एक भक्ति परीक्षा लीडर और एक फंड रेजिंग। 3 गोल रखिए आप लोग अपने, है ना। ये 3 गोल वाइडली इंपॉर्टेंट गोल रखिए और उसी के आधार पे फिर आगे हम लोग प्लान करेंगे। समझ में आया है गौर विग्रह प्रभु। तो आप अगले, तो ये मैंने आपको बेसिक चीज बताई, इसके बहुत सारी चीजें बता सकते हैं हम, इसमें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया है। रामेश्वरी आराधना माता जी, आपको समझ में आया है। यस। तो अभी तो जी हमने भी इस तरह से थोड़ा बनाया था, लेकिन ये इस साल अपडेट नहीं कर पाए। तो ये हाँ पहले एक बार सिखाया था 2025 का, तो हम लोगों ने टारगेट किया कि कितने स्ट्रीट डिवोटी थे अभी होंगे, हाँ यूथ डिवोटी, कांग्रीगेशन डिवोटी, इस तरह से हापुड़ से के लिए बनाया था। तो ये बनाया था, करेक्ट, याद है मुझे, है ना। मुझे याद है, सारे मैनेजर्स को बोला था मैंने, है ना। तो यही चीज है, ये पहला पॉइंट है और अब जब आपको आपने बना लिया कि मेरा गोल है, ये है सेक्टर सर्वेंट बनाना, भक्ति वृक्षा लीडर बनाना और फंड रेजिंग करना, ये 3 गोल है आपका, है ना। ये रामेश्वरी राधामती, आप कुछ बताना चाहती हैं। यस हरे कृष्णा प्रभु। हाँ मुझे आपने पिछले साल जब लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स हुआ तो आप बोले थे आपकी आवाज जो है ना ब्रेक हो रही है। एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे अभी हाँ आवाज आ रही है। हाँ अभी आ रही है। प्रभु जी मैं बस जस्ट ये बता रही थी कि लास्ट ईयर जब वेब सिटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आप उसमें बोले थे कि गढ़मुक्तेश्वर के लिए टारगेट होना चाहिए कि 5 साल में 10,000 बनाए जाए। हाँ वेरी गुड Yes, तो करेक्ट। हमने हरवेश नरभावना माता जी और मैं मिलकर पूरा उसका गोल तैयार किए थे कि कैसे कैसे करना है। यस तो बताइए। अभी 2 ही साल हुए हैं, तो पिछला 1 सवा साल तो बहुत स्ट्रगल में रहा उधर, क्योंकि वो तो शुरू में तो स्ट्रगल तो रहता है। जी जी जी, लेकिन अभी ये है कि हम 2 क्लासेस उधर कर रहे हैं। एक क्लास में 18 से 20 भक्त हैं और दूसरी क्लास में 30 से 40 भक्त आते हैं। और कुछ दो तीन एक कपल और 2 डिवोटी माता जी हैं जो 16 राउंड कर रहे हैं, और वो लोग लीडिंग रोल में धीरे धीरे आ रहे हैं। तो अभी थोड़ा कुछ मतलब प्रयास कर पा रहे हैं आपकी वेरी कृपा गुड, से, आपके आशीर्वाद से। या वेरी गुड, है ना। वेरी गुड, बहुत अभी अच्छा। आपने बताया है तो उसी के अनुसार अभी इस क्लास से पहले ही मैं नरवाना नदी से बात कर रही थी कि हम कुछ इनोवेशन करते हैं, जो इस आशय कृष्ण गुरु जी ने बताया था उसके अनुसार। और प्रभु जी से बात करेंगे और फिर कुछ नया नया प्लान करके किस किस मेथड से हम लोगों को जोड़ सकते हैं, कैसे हरि नाम निकाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा, है ना। तो अभी आपका आपका गोल है कि पहले भक्त बनाना है कि नहीं। यस। लीडर तो अभी चलो 16 राउंडर कुछ बन गए हैं, तो ये हाँ भी एक जी। गोल है कि आप धीरे धीरे आप 16 राउंडर का गोल रख सकती हो, है ना। यस। और वो जो 16 राउंडर्स जो बने हैं उनमें से कुछ को आप पोटेंशियल, है ना, असिस्टेंट भक्ति वृक्षा लीडर मान सकती हैं, है ना, हाँ जी। जो आप लोगों को असिस्ट करेंगे। अभी तो आप लोग खुद सेक्टर सर्वेंट लीडर हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अभी गढ़ मुक्तेश्वर के लिए आप लोग भक्ति वृक्षा लीडर ही हैं, यस। है ना। यस। यस। तो एज ए भक्ति वृक्षा लीडर आपका गोल है, आप अगर भक्ति वृक्षा लीडर का हैट पहन लीजिए तो आपका गोल होगा कि असिस्टेंट बनाना भक्ति वृक्षा लीडर, है ना। यस। तो जो लोग 16 राउंडर कर रहे हैं उनको आपको
ट्रेन करना पड़ेगा, है ना। ओके, यस। तो अब देखिए तो कैसे करेंगे, अब आपको ये थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी तो आप लोग समझ गए बेसिक चीज, है ना, कि आपका गोल कैसे सेट करना है ना। जो भक्ति परीक्षा लीडर है उनका गोल होगा असिस्टेंट भक्ति परीक्षा लीडर बनाना, 16 राउंडर बनाना, सीरियस डिवोटी बनाना, उनका गोल ये रहेगा। जो लोग सेक्टर सर्वेंट लीडर है उनका गोल है भक्ति परीक्षा लीडर बनाना, उनका गोल है भक्त सेक्टर सर्वेंट लीडर बनाना। तो इस फंड रेजिंग करना, है ना। फंड रेजिंग तो सबका गोल एक रहेगा ही, है ना, वो तो उसको रखना ही है, एक पैरेलल रहेगा, वन ऑफ द गोल। तो लाइक दैट, तो इस तरह से आप लोग जो है वो हर भक्त को अपना पेपर पे लिखना है, क्या पेपर पे लिखना है। हाँ, ये शुड बी डॉक्यूमेंट, लिख रिटन डॉक्यूमेंट, जैसे वक्रेश्वर महापुर में दिखा है रिटन डॉक्यूमेंट, है ना। गोल 1, है ना, यहाँ मेजर को है इतने असिस्टेंट राउंडर बनाने हैं, इतने असिस्टेंट भक्ति परीक्षा लीडर बनाने हैं 31 दिसंबर 2026 तक, है ना। तो ये आप गोल बना लीजिए, है ना। और इतने डिवोटी बना, इतना फंड रेजिंग करना है, अभी इतना आ रहा है, अगले 1 साल में इतने करना है, तो ये 3 गोल हो गया, है ना। तो इसलिए हर भक्त, जैसे सत्यभानु प्रभु आपका गोल क्या है, आप सेक्टर सर्वेंट हैं रुद्रपुर में, यस प्रभु जी। तो आपका गोल होना चाहिए सेक्टर सर्वेंट लीडर बनाना। भक्ति परीक्षा आपके अंडर में चल रहा है, यस प्रभु जी। कितने भक्ति परीक्षा लीडर हैं, 5 है। 5 भक्ति परीक्षा लीडर है ना। तो आपको अब का क्या उन 5 में से कुछ पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है जो आपको फ्यूचर में सेक्टर सर्वेंट लीडर बन सके, है ना। और साथ में कुछ असिस्टेंट भक्ति परीक्षा लीडर कितने हैं आपके, अराउंड 20। 20 हैं, तो उनमें से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो भक्ति परीक्षा लीडर बनेंगे अगले 1 साल में, है ना। और 16 राउंडर कितने हैं, अराउंड 50। हाँ, तो उनमें से आप कुछ रख सकते हो जो असिस्टेंट भक्ति परीक्षा लीडर बने, है ना। और फंड रेजिंग का टारगेट तीसरा, है ना। तो इस तरह से आप अपना टारगेट आप पेपर पे लिख लो, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करके, है ना। तो वो आपका गोल हो गया, है ना। ये सारी गोल्स हैं, हमेशा नंबर होगा, है ना। नंबर ऑफ भक्ति परीक्षा लीडर फ्रॉम 5 to 10 बाय 31 दिसंबर 2026। ये आपका एक गोल हुआ, वाइडली इंपॉर्टेंट गोल, वीक नंबर 1, क्लियर, समझ में आया। वीक 2 क्या हो जाएगा, वीक 2 होगा कि अभी आपके पास केवल एक ही सेक्टर सर्वेंट लीडर आप हैं, है ना। फ्रॉम 1 to 2 और 3 जो भी आप देख लीजिए, जो भी प्रैक्टिकल आपको लग रहा है ना। सो लाइक दैट, इस तरह से आप 2 गोल, और तीसरा फंड रेजिंग का गोल, है ना, ऐसे रख सकते हैं आप। ओके, तो इसको आप लोग, अभी मैं बोल रहा हूँ लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपना अपना फाइनलाइज कर लीजिए। ओके, हर लीडर अपने एरिया में, दामोदर लीला प्रभु आप भी इस तरह से बनाइए अपना, है ठीक है, और पेपर पे डॉक्यूमेंट करके। तो ये एक हो गया, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा, है ना, क्योंकि कई भक्त लोग समझ में नहीं आ रहा था ना इंग्लिश का वीडियो, इसलिए हमने इस तरह से डिस्कशन कराया, है ना, ताकि अभी तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, है किसी को अभी भी है जो नहीं समझ में आ रहा है। कई भक्त तो वीडियो ऑफ करके बैठे, जो वीडियो ऑफ करके बैठेंगे उनसे बात भी नहीं करूंगा मैं, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, है ना, ये बात समझिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं ना, तो आप लोग आराम करेंगे तो हम भी आराम करेंगे, है? मजबूरी अलग बात है, किसी की मजबूरी हो सकती है कुछ, तो आप वीडियो बंद, तो वो भी बता देना चाहिए कि मेरी ये मजबूरी है, इसलिए हम वीडियो बंद करके बैठे हैं, प्रभु जी परमिशन दे दीजिए, है ना, लाइक दैट। चलिए ठीक है, तो अब आगे इसके बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल है। और इसके अलावा जो कुछ भी आप करते हो, जैसे कहते हैं, प्रभु जी रथ यात्रा करना है, रथ यात्रा करना क्या है, आपका गोल नहीं है, रथ यात्रा करने से आपको क्या मिलेगा बताओ, लोग आएंगे खा पी के चले जाए,
खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इतना ताम झाम सब होता है, पर उसमें से एक दो भक्त निकलते हैं, है कि नहीं? कितना मेहनत लगता है। और सबसे बड़ा चीज कि जब हम फेस्टिवल्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम अपना हमारा गोल से नजर हट जाता है। कहना कि वर्ल्ड विंड होता है, वर्ल्ड विंड मतलब है ना तूफान, है ना। दो भक्तों के बीच में झगड़ा हो गया, उसको सुलझाना, ये वाइडली इंपॉर्टेंट गोल नहीं है ना। और उसमें आपका पूरा दिन निकल गया है, तो उस वो आपका गोल नहीं था, है ना। इस तरह से रोजमर्रा के डेली कुछ ना कुछ इस तरह की जो इश्यूज आती रहती हैं, जो आपको आपके गोल से डी फोकस करती हैं, है ना। आपको जो फोकस नहीं करने देती है कि मेरे को सेक्टर सर्वेंट बनाना है, मेरे को भक्ति वृक्षा लीडर बनाना है, इसको इससे आपका ध्यान हटा देती है। मेन लक्ष्य है, उससे आपका ध्यान हटा देगी, है ना। तो वो एक्टिविटीज जो होती हैं उनको भी हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें हमारे फोकस हटा रही है मेरे लक्ष्य से, है ना। जिसको होता है डिस्ट्रैक्शन, है ना। डिस्ट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं विपथन। विपथन मतलब आप समझ रहे हैं ना। हिंदी भी शुद्ध बोलूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश भी बोलूंगा तो नहीं समझ में आएगा, हैं? तो ध्यान भंग, ध्यान, आपका ध्यान क्या बोलेंगे उसको, आपका ध्यान विचलित कर देता है ना वो एक्टिविटी है। जैसे एक एक्टिविटी आपका ध्यान विचलित कर देगा कि अरे उस माता जी ने मेरे को ये बोला था, इसलिए मैं आज पूरे दिन डिस्टर्ब रही, इसलिए भक्ति वृक्षा लीडर बनाने के लिए ध्यान नहीं गया उस पर। क्योंकि मैं दिन रात यही दिन भर, पूरे दिन भर पिछले एक सप्ताह से यही सोच रहा हूँ, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, आपके लिए क्या है, ध्यान आपका भ्रम दिग्भ्रमित कर देता है आपके लक्ष्य से, आपको भटकाना, भटकाओ, सॉरी भटकाओ, बहुत अच्छा शब्द मिल गया, देखिए आपको भटका देगी आपके लक्ष्य से, है ना। तो जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य पे फोकस है वो इन सब चीजों में ज्यादा नहीं फंसता है। इस सब चीजों ये तो चलती रहेंगी लाइफ में, है ना। सर्दी गर्मी, अ, मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, ये सब चलता रहेगा। आप इसके पीछे भाग के अपने लक्ष्य को भूलेंगे तो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये सब को चलते रहने दें, साथ में डेडिकेटेड टाइम निकालना चाहिए ताकि हम रोज अपने लक्ष्य पे काम कर सकें, अपने लक्ष्य को स्मरण करें, अपने लक्ष्य को कभी भूले नहीं, और हम उस पे फोकस करें डेली। हम कुछ, हम अपना टारगेट बनाए कितना तो काम करना ही है ना। तो इसको कहते हैं फोकस। हम फोकस कर रहे हैं अपने लक्ष्य पे। और जो वर्ल विंड है, भटकाव जिसको बोलते हैं, भटकाव, भटकाव से रहना है क्या, सावधान रहना है, ताकि वो हमें इतना भटका न दे। तो हमें हमारा जो मेन लक्ष्य, जो हमने एक दो तीन जो हमने सेट किया है, उसी को हम ना कर पाए। ठीक है, तो ये दो चीज, भटकाव और विग, याद रखिए, विग, विग एंड वर्ल विंड, दो शब्द है। एक वर्ल विंड मतलब भटकाव, और विग मतलब लक्ष्य, गोल, वाइडली इंपॉर्टेंट गोल। और दूसरा क्या है, वर्ल विंड, है ना। चक्रवात, चक्रवात होता है, वर्ल विंड आप जानते हैं, आपने देखा होगा वो, क्या नाम था उसका राक्षस का, तृणावर्त, है तृणावर्त, है ना। ऐसे नहीं, गर्मी में ऐसे ऐसे आप देखते हैं चक्कर, हवा जैसे घूमने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, उसी को वर्ल विंड बोलते हैं, है ना। तो उसमें व्यक्ति फंस जाता है, चक्रवात में फंस जाएगा, तो उसी में घूमता रह जाएगा। और जाना था कहीं और, उसमें फंस गया, उसी में घूमता रह गया 4 घंटे, है ना, लक्ष्य भूल गया है। तो ऐसे लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमको लक्ष्य के तरफ जाने से रोकती हैं, हमको भटका देती हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना है कि उस उन चीजों को भी हमें हैंडल करना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर वाइडली इंपॉर्टेंट गोल, विग। ठीक है, तो अभी मैं यही आज के लिए यही विराम दूंगा। आगे अगर आप लोग समय देंगे तो फिर आगे बताएंगे कभी। आज तो इतना ही रहेगा बस। ओके, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ समझ में आया आप लोगों को कुछ?
रूपेश्वर जयपुर, आपका क्या है वर्लविंड और बिग? कृष्णा जी, अभी अभी तो एक भक्त बनाना है प्रभु जी। एक भक्त बना, ये आपका गोल है? यस प्रभु जी। वेरी गुड, चलिए कहीं से तो शुरुआत होगी। कब तक? नेक्स्ट ईयर तो प्रभु जी। नेक्स्ट ईयर तक एक भक्त बनाना है? किसका नहीं गोल है प्रभु जी, ये? हाँ। एटलीस्ट 10। है? 10 प्रभु जी। 10 भक्त बनाना है नेक्स्ट ईयर तक। नेक्स्ट ईयर मतलब कौन, जनवरी 2027 या दिसंबर जून जून 2027? जून प्रभु जी। जून जून। 2027। अच्छा, तो ये यस प्रभु आपका जी। भक्त बनाना गोल है, तो इसका मतलब आप भक्त बनाता है भक्ति वृक्षा लीडर, तो आप एज ए भक्ति वृक्षा लीडर अभी आप इस ग्रुप में हैं, है ना? यस प्रभु जी। ऑल्दो आप सेक्टर सर्वेंट लीडर के ग्रुप में हैं, लेकिन आप काम करेंगे भक्ति वृक्षा लीडर का, सही बात है? यस प्रभु जी। हम्म। ओके, गुड। ठीक है, चलिए तो अभी मैं यहीं पे विराम दी, किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो अभी, हैं? और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे कभी समय मिले तो, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस करूं और चीजें समझ में ना आए तो उसका लाभ नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट। यस, पूछो माता जी, आप पूछो। अब हरे कृष्णा प्रभु, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। प्रभु जी, जैसे अभी आपने लास्ट में बताया कि हम लोग जो जिसका मेन मतलब गोल निश्चित होता है वो चक्रवात में नहीं फंसता है। मैं पूछना चाह रही थी कि प्रभु जी, जैसे अभी आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मैंने भी विजन सेट किया हुआ था, बट मैं बहुत दिनों से उस विजन को देख ही नहीं रही थी। जैसे ऑन पेपर सब सेट कर रखा है कि कितने डोनर्स हैं, फिर उनको भक्त बनाना है, कितने को कितने दिनों तक माला पे लेके आना है। तो प्रभु जी, मैं उस चीज को तो भूल ही चुकी थी, बस फंड रेज कर रही थी। और मुझे बस इतना लग रहा था कि फंड रेज करते जाओ करते जाओ, और बस फंड रेज करना है, यहाँ लैंड निकाल लेना है, यहाँ मंदिर बनाने के लिए ले आना है, बस हाँ, ले आना है, कार ले आना है। तो मुझे अभी क्या हुआ कि आपके लेक्चर के माध्यम से आज थोड़ा सा फिर से याद आया कि अरे नहीं, मैंने तो विजन बनाया था बट मैंने उसको फोकस ही नहीं किया। तो प्रभु जी, ये मुझे ऐसा लगता है चक्रवात में फंसना ही हो गया, जो टाइम टू टाइम चीजें आ रही हैं। तो प्रभु करेक्ट। जी, कैसे समझू इस चीज को और कैसे निकल सकती हूँ, मतलब हमेशा कैसे विजन को एकदम फोकस्ड रख सकती हूँ अपने आप को, ये जानना चाह रही हाँ, हूँ। इसके लिए आपको वीडियो ऑन करके और अगले क्लास में आना पड़ेगा। सॉरी प्रभु जी, राइट नाउ आई एम इन द किचन, सो इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। वैसे मैंने लेक्चर पूरा वीडियो ऑन करके ही सुना था प्रभु जी मतलब आपका। अगले क्लास में अब चर्चा होगी आगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने प्रश्न पूछा है, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना? इसी का उत्तर अगले वो जो बताया गया ना, आगे बाकी के 3 जो चीजें हैं, फोकस, लिवरेज, है ना, फिर स्कोर कार्ड, फिर अकाउंटेबिलिटी, है ना, ये 3 जो बाकी जो डिसिप्लिन है ना, वो इसी पॉइंट पे हैं जो आप बता रही हैं, है ना? तो इसके लिए आपको अगले क्लास में आना पड़ेगा, है? सीरियल नहीं होता आगे एक जगह खत्म कर दे बोले आगे के लिए अगले अगले, है ना, एपिसोड में बताया जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन उसके लिए आपको अगले एपिसोड में आना पड़ेगा। ओके, यस। यस। शशि प्रियनाथ प्रभु, बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है ये, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है, अगर आप लोग इसको सीख जाएंगे ना तो आप लाइफ में सुपर फास्ट ट्रेन की तरह आपका लाइफ जाएगा, है ना, बहुत अच्छा जाएगा ये, बहुत इजी कूल एंड काम लाइफ हो जाएगा, बहुत डिसिप्लिन में लाइफ जाएगा, इतना आनंद आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई डाउट्स नहीं रहेगा, है ना? और स्मूथ लाइफ जाएगा। दिस है, ये आपको भक्ति में हेल्प करेगा, है ना? जैसे आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ, है ना? या 1 मिनट।
जैसे हमारा एक डिवोटी देखिए बनाया है ना, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? यस प्रभु जी दिख रहा है। यस प्रभु। ये देखिए, मोदी नगर विजन टिल 2027, मेंबर्स 60, फ्रंटलाइनर्स 10, फैसिलिटेटर्स 3, सक्सेसर 1 है। एक हमारे भक्त हैं, उन्होंने ये विजन सेट किया अगले एक साल का, है ना। एक सक्सेसर बनाना है, मतलब एरिया लीडर यूथ प्रीचिंग में। तो आपका सेक्टर सर्वेंट लीडर है, यहाँ पे एरिया लीडर। ये फैसिलिटेटर 3, मतलब भक्ति वृक्षा लीडर 3, 10 फ्रंट लाइनर मतलब असिस्टेंट भक्ति वृक्षा लीडर, और 60 मेंबर मतलब 60 डिवोटीज। ये इनका एक साल का गोल है ना। अब ये 2027 तक, मतलब, लेकिन डेडलाइन 1 मार्च 2027, है ना। फ्रॉम कॉन्टेक्ट टू लीडर्स मिशन, फ्रॉम कॉन्टेक्ट टू, मतलब नए व्यक्ति का कांटेक्ट करेंगे, उसको लेकर जाएंगे कहाँ तक, लीडर तक। एवरी मेंबर इज ए फ्यूचर फ्रंटलाइनर, एवरी फ्रंटलाइनर इज ए फ्यूचर फैसिलिटेटर, एवरी फैसिलिटेटर इज ए फ्यूचर लीडर। और नीचे आवर पाथ लिखा है, देखिए, आउटरीच, नए लोगों को कांटेक्ट लेना, इसको बोलते हैं आउटरीच। फिर उनको कॉलिंग करना, कॉलिंग करके उनको प्रोग्राम में बुलाना, प्रोग्राम के बाद उनको फैसिलिटेशन करना, फैसिलिटेशन करके उनको मेंबर मतलब बनाना, चैंटिंग कराना, मेंबर में से जो सीरियस करके उनको फिर फ्रंटलाइनर बनाना, फिर फ्रंटलाइनर को सीरियस करके उससे फैसिलिटेटर निकालना, फिर फैसिलिटेटर से फिर सक्सेसर बनाना। दिख रहा है? यस प्रभु। यस या प्रभु। इस तरह यस से, प्रभु जी। है ना। अब देखिए, उनके अंदर जो फ्रंट लाइनर हैं उस भक्त के अंदर, उनके लिए उन्होंने वीकली टारगेट रिपोर्ट बना रखा है फ्रंट लाइनर्स के लिए। फ्रंट लाइनर अपना नाम लिखेगा और वीक लिखेगा, है ना, कि कौन से सप्ताह में, है ना, मतलब वो 19 जून से 26 जून वाला वीक में क्या वीकली टारगेट है, कितना डाटा कलेक्शन किया, मतलब नए लोगों का कांटेक्ट लेकर आया, है ना। डेटा कलेक्शन कितना हो, उसमें से कितने यूथ कांटेक्टेड, मतलब फोन किया, है ना, कितने उनको कॉल किया बाद में, और उनको क्लास में इनवाइट किया, उसका नंबर ये नीचे लिखेगा। फिर यहाँ पे उसने रीडिंग कितना किया अपना, हियरिंग कितना किया अपना, कितने बजे उठा, कितने बजे उसने कोई नया स्किल डेवलप किया, जैसे मृदंगा प्लेइंग, प्रेजेंटेशन स्किल, फैसिलिटेशन स्किल, तो उसके ऊपर तो 5 उन्होंने वीकली टारगेट सेट किया है फ्रंट लाइनर को, कि ये करना है 5 चीजें उसको वीक में, है ना। और फिर उसको डेली ट्रैकिंग करना है, क्या, मंडे वही 5 चीज, देखिए लिखा है 5 चीज, है ना। 5 चीज लिख दिया। मंडे को किए डेटा कलेक्शन कितना किया, यूथ कांटेक्ट कितना किया, रीडिंग कितना मिनट किया, हियरिंग कितना किया, वेकअप टाइम कितना था, स्किल प्रैक्टिस कितना किया, जैसे पूरे वीक का वो यहाँ रिकॉर्ड लिखेगा वो, है ना। फिर वीकली समरी निकाले, पिछले पूरे समरी में टारगेट कितना था, टारगेट की अचीव कितना किया, डिफरेंस कितना रहा, उसी तरह से हर पांचों का उसने वीकली समरी बना लिया, है ना। और फिर रिफ्लेक्शन करेगा, वीकेस्ट सक्सेस ऑफ दिस वीक यहाँ लिखेगा, इस वीक का सबसे बड़ा सक्सेस क्या था, मेन चैलेंजेस फेस्ड इन दिस वीक ये लिखेगा, और टारगेट फॉर द नेक्स्ट वीक, अगले वीक क्या करेगा, जिससे कि जो जो भी समस्याएं आई उसको दूर करने के लिए अगले वीक क्या करेगा, और फिर यहाँ सिग्नेचर। तो ये वीकली फ्रंट लाइन वीकली टारगेट रिपोर्ट, है ना। इस तरह से ट्रैकिंग, है ना। उसी तरह से जून 2026 एग्जीक्यूशन बोर्ड बना दिया, है ना। ये टारगेट था जून का 33 मेंबर ऐड करना, 5 फ्रंट लाइनर बनाना, अचीव कितना हुआ, 30, और 4 फ्रंट लाइनर बनाए, एक महीने में 30 मेंबर बनाया, 4 फ्रंट लाइनर बनाया, तो गैप कितना आया, 3 मेंबर कम बने और एक फ्रंट लाइनर कम बना, है ना। तो इस तरह से उनका रिपोर्ट बन गया पूरे जून महीने का, है ना। और मंथली एक्टिविटी क्या हो, कितने 100 यूथ डेटा कलेक्ट किया कि नहीं किया, 2 हरिनाम संकीर्तन किया कि नहीं किया, 4 संडे प्रोग्राम किया कि नहीं किया, 2 कोऑर्डिनेटर मीटिंग किया कि नहीं किया, 2 कोर मीटिंग किया कि नहीं किया, ऐसे टिक करेगा, है ना। और फिर मंथ इंटरव्यू, कितने मेंबर बनाए, 33 में से कितने मेंबर है, 30 बनाए, 5 फ्रंट लाइनर, 4 फ्रंट लाइनर, अचीव हुआ कि नहीं हुआ, येस नो। तो इस तरह से हमें ट्रैकिंग बनाना है। उसी तरह से यहाँ देखिए,
आवर जर्नी जून 2026 टू 1 मार्च 2027, है ना। तो अभी कितने हैं मेंबर, कितने हैं 30, और 1 मार्च तक करने 60 हैं। तो इसको बना दिया कि जून 2000 तक 33 करेंगे, जुलाई में 35, अगस्त में 38, सितंबर में 40, अक्टूबर में 44, नवंबर तक 48, दिसंबर तक 51, जनवरी तक 54, फरवरी तक 57 और मार्च तक 60। उधर फ्रंट लाइनर 4 हैं, लेके जाना है 10 तक। तो जून जुलाई तक 5, अगस्त सितंबर तक 6, अक्टूबर नवंबर तक 7, अक्टूबर में 7, नवंबर में 8, दिसंबर में 8, जनवरी में 9, फरवरी में 10 और मार्च तक 10। उस तरह से फैसिलिटेटर, पहले के 3 महीने कोई फैसिलिटेटर नहीं रहेगा, आप डेवलप करने में टाइम लगाएंगे। फिर अगले 3 महीने में एक फैसिलिटेटर क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद अगले 2 और फिर फाइनली 3 फैसिलिटेटर, और सक्सेसर पूरे साल में एक बनाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए कैसे डिवोटिज प्लान कर रहे हैं। मैंने आपको एक, है ना, डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया। यू गॉट द आइडिया कि आपके हर टारगेट के लिए आप कैसे प्लान करेंगे, और फिर उसको वीकली मीटिंग में, जब भी हमारा वीकली मीटिंग होता है, उस मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं कि आपने इस वीक का जो टारगेट था आपने अचीव किया कि नहीं किया, है ना। आधे घंटे की मीटिंग, ज्यादा लंबा नहीं होता है। सारे जैसे 6-7 लोगों का मीटिंग आधे घंटे में सब रिवीजन हो जाता है। आपने कितना, आपका टारगेट था कितना किया, आपने कितना किया, हो गया नहीं किया, अगले वीक क्या करेंगे, इस तरह से जो है वो चीजें अचीव हो जाती हैं ना। तो मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि कैसे हमें इसको प्लान करना है। और हर वीक जस्ट आधे घंटे का मीटिंग रखिए, उसमें रिव्यू कीजिए, हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ क्या क्या हो गया, धन्यवाद, क्या क्या नहीं हुआ, उसके लिए अगले वीक में क्या एक्स्ट्रा करेंगे ताकि आपका मेकअप हो जाए, जो कमी रह गया अगले वीक में आप मेकअप कर लो उसको। दैट्स ऑल, खत्म मीटिंग। हरी बोल, थैंक यू। और क्या करना है, इतना ही करना है, सो इजी। ओके, तो मैं, किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल क्लोज है। तो इसको आगे हम बताएंगे आपको, नेक्स्ट सेशंस अगर होंगे हमारे, जब भी होंगे टाइम मिलेगा तो आई विल एक्सप्लेन मोर डिटेल कैसे प्लान किया जाता है ना। उसको आगे बताया जाएगा डिटेल में। ओके, ठीक है अदुल ब्रो, विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच प्रोजी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। प्रोजी ने हमें आज बड़े प्यार से समझा दिया, ये बट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो शायद हम लोग मिस कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बीइंग ए सेक्टर सर्वेंट, बीइंग ए लीडर। और प्रोजी ने बहुत प्यार से समझाया, बट इशू बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको बहुत सीरियसली लें। और जो 3 पॉइंट स्पेशली बताए प्रोजी ने, जो मेजोरिटी ऑफ द डिवोटीज के लिए यहाँ फॉलो करेंगे, सेक्टर सर्वेंट कितने बनाने हैं, कब तक बनाने हैं, और 270 लीडर्स कब कितने बनाने हैं और कब तक बनाने हैं, और तीसरा फंड रेजिंग, फंड रेजिंग के उसमें हमें कितना इंक्रीज करना है। उन सब नेक्स्ट मीटिंग तक जब तक हम बना लें अपना, जब भी नेक्स्ट क्लास प्रोजेक्ट का जैसे अवेलेबिलिटी होगा हम लोग प्लान करेंगे, और इसके आगे जो अभी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जीक्यूशन में उस पर आप लोग डिस्कशन अपना अपना करेंगे। वीक वीक बना लीजिए, ठीक है ना। सब लोग, सारे सेक्टर सर्वेंट का वीक रेडी होना चाहिए अदुल ब्रो। यस प्रोजी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रोजी। हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रोजी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, राम हरे हरे राम, राम हरे राम राम राम, हरे राम हरे। राम, हरे राम हरे। राम हरे हरे। थैंक्स टू ऑल द डिवोटीज ऑल्सो। हरे कृष्ण। सच में बहुत ही बढ़िया